Assalamu alaikum everyone. In today's class, we will discuss about the market structure. The question is, what is market structure? Why we are doing it? So let me have a review of what we have done. We will started with the discussion of producer theory. Okay, and then we said what producer wants. He wants to maximize profit. Okay, so what is profit? So profit is basically the difference between total revenue and total cost. So what is total revenue? It is equals to primes multiplied by the output. What is total cost? Cost is a function of output produced. So what do we need to go with? What is the how the price is determined? How the production is taking place? What is meant by the cost? So ये P जो है, it depends on मार्केट स्ट्रक्चर जो कि हमने अभी पढ़ना है. Q means all production theory. We have done already production theory. चैप्टर 5 था ये. और C of Q का मतलब है cost theory, which is चैप्टर नंबर 6. और ये जो मार्केट स्ट्रक्चर है ये है चैप्टर नंबर 7. So that is what we are doing. We have done the production theory. और उस production theory के अंदर what we were doing, हमने बात की थी total product. ठीक है, short run में, long run में, average product, marginal product. ठीक है, product, average product, marginal product और relationship between average and marginal, diminishing marginal productivity. ठीक है जी. और उसके अलावा long run production function कैसे होते हैं and all. जब हमने कॉस्ट की बात की, वी टॉक्ड अबाउट टोटल कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, संक कॉस्ट. वी टॉक्ड अबाउट इसके अलावा अकाउंटिंग कॉस्ट. ठीक है जी. और हमने बात की थी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट एंड इम्प्यूटेड कॉस्ट. ठीक है जी. और इसके अलावा कॉस्ट कर्व्स कैसे होते हैं और इनके रिलेशंस क्या होते हैं, तो ये सारी डिस्कशन हम ऑलरेडी कर चुके हैं लास्ट एक्सरसाइज में. नाउ इट्स अ टाइम टू डिस्कस अबाउट द प्राइसिंग या प्राइसिंग बिहेवियर. तो कहाँ से आता है ये प्राइसिंग बिहेवियर? इट कम्स फ्रॉम द मार्केट स्ट्रक्चर. नाउ व्हाट इज मेंट बाय मार्केट स्ट्रक्चर? मार्केट इज ऑलवेज डिफाइंड एज सप्लाई एंड डिमांड. तो स्ट्रक्चर का क्या मतलब है कि there are different type of situation which can be prevailed in a market. And what are those situation? Let me show you. Situation के लिए let's take some examples कि क्या 4 situations हो सकती हैं मार्केट में जिसकी बेसिस पे we define it as market structure. 4 situation क्या है? Number one situation के there is a product which is being sold by many sellers, and each seller is selling it at a fixed price, or no one can affect it. Just like bread, there are many sellers selling breads at a fixed price. इसी तरह से और भी कोई ऐसी products ले सकते हैं जो कि not single seller is providing, but there are multiple sellers who are selling the product in the market. So this product is available at same prices, and if somebody actually increase the price, so he will be out of the business because nobody will buy from him. So no seller can influence price. That is the most important crucial part of this structure, where no seller can influence price. ठीक है जी. इसको मैं अभी और डिटेल में कराऊंगी, बट फॉर नाउ इट्स इनफ. सेकेंड होता है टोटल एक्सट्रीम. Only one seller is there who is responsible for supplying the entire product. जैसे कि पहले ज़माने में somehow वापडा को हम कहते हैं, या रेलवेज इंडिपेंडेंट था, लेकिन अब वापडा के भी ऑल्टरनेटिव्स आ चुके हैं. आईपीपीज हैं, और रेलवे में भी प्राइवेट जो है वो सर्विसेज हैव स्टार्टेड इसी तरह से. लेकिन इनिशियली वी कैन टेक दिस एग्जांपल वापडा और रेलवेज. थर्ड है जिसमें कि आपके पास वन सेलर नहीं बल्कि टू सेलर्स हैं. ठीक है, टू सेलर.
और चौथा है जिसके अंदर आपके पास नंबर ऑफ सेलर्स हैं लेकिन बट ईच सेलर इज सेलिंग अ डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। डिफरेंशिएटेड का मतलब है उसके फीचर्स अलग हैं। डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट। तो ये जो चार मैंने सिचुएशंस मेंशन की हैं, दे आर बीइंग distinguished on the basis of the number of sellers and product. तो product, price, number of sellers, यहाँ पे नंबर ऑफ सेलर्स को मैं इधर लिखती हूँ, नंबर ऑफ सेलर्स, ठीक है, एंड व्हाट दैट मार्केट स्ट्रक्चर इज। इसको हम ले लेते हैं what that market structure is called। ओके, तो ये मेरे पास चार कैटेगरीज हैं जिसको मैं डिस्टिंग्विश कर रही हूँ। ओके, और ओके, सो देखते हैं क्या है। सबसे पहले नंबर एक सेलर, तो सिंगल सेलर, टू सेलर्स, 2 to 15 sellers, ठीक है, many sellers and differentiated product। और लास्ट वाला क्या होगा, सॉरी लाइन को लंबा करना पड़ेगा, लास्ट होगा, पहला है सिंगल सेलर, 2 सेलर्स, तीसरा ये है, चौथा ये है और पांचवा है मल्टीपल सेलर्स। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा लंबा कर लेते हैं। ओके, सिंगल सेलर प्रोडक्ट, होमोजीनियस प्रोडक्ट, 2 sellers, होमोजीनियस प्रोडक्ट, सेम प्रोडक्ट, ठीक है, मैनी सेलर, डिफरेंशिएटेड, ये है डिफरेंशिएटेड, मल्टीपल सेलर, होमोजीनियस। प्राइसेस सेट बाय सेलर, एक ही जब सेलर है तो वो अपनी मर्जी से प्राइस चार्ज करेगा। 2 sellers सेट बाय सेलर, और इसके अगर इसकी इन दोनों में, ये दोनों जो फीचर्स है ये सिमिलर है। इंटरडिपेंडेंट, कौन इंटरडिपेंडेंट है, सेलर्स इंडिपेंडेंट है एक दूसरे के ऊपर। मैनी सेलर्स मगर डिफरेंशिएटेड है, सेट बाय सेलर based on this differentiation in the product। और homogeneous product क्या है, it's seller has no control on price। इस पहला जो मार्केट स्ट्रक्चर है जिसमें सिंगल सेलर होता है इसको कहते हैं मोनोपोली, और ये जो दोनों हैं इन दोनों को कहते हैं ओलिगोपोली।
इसको भी, ये बेसिकली ओलिगोपली की स्पेशल फीचर है जिसे कहते हैं डेओपली। डेओपली में 2 सेलर्स हैं, अगर 3 हो तो ट्रिओपली, और अगर 3 से लेके 15 तक सेलर्स हो तो उसको हम कहते हैं ओलिगोपली। फिर मैनी सेलर्स डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट, इसका खास नाम है, इसका नाम है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन। ठीक है जी। और मल्टीपल सेलर्स को कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन। ओके, तो ये एक मैंने आपको मोटा मोटा आइडिया दे दिया है कि मार्केट स्ट्रक्चर किस किस किस्म के होते हैं। नाउ आई वुड स्टार्ट विद द परफेक्ट कंपटीशन, आई विल गो विद द डिटेल्स। अब ये आपने जो समझा है उसमें व्हाट यू हैव लर्न सो फार के differentiation in the market structure is based upon number of sellers which are involved in the production process. Sellers can be one, can be millions. If it is one, it's monopoly. It is two, then it's called duopoly. If 3 is called triopoly, and then if 2 to 15 it's called oligopoly. Duopoly, triopoly and oligopoly, actually they are the same. Oligopoly is the main name and duopoly and triopoly comes under it. So if just 2, duopoly, if it's 3 it's triopoly, or if it's more than that then we should call it oligopoly, and collectively they all called oligopoly. The next different market structure apart from perfect competition and single seller है monopoly, 2 से लेके 15 sellers तक है oligopoly. Monopolistic competition is not about number of sellers. There are many sellers selling selling the product, but the difference in the in this structure is that in the monopolistic competition, the product which is being sold by each seller has some differentiation. इसको मैं बाद में एक्सप्लेन करती हूँ। और इसके बाद लास्ट है वो है परफेक्ट कंपटीशन जिसमें मिलियन ऑफ सेलर्स है। तो आई स्टार्ट विद परफेक्ट कंपटीशन। ओके, डिटेल में इसकी आपको बताऊंगी। तो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट स्ट्रक्चर है एंड इसकी क्या क्या फीचर्स हैं। नंबर 1 फीचर्स इसकी जो है, ये कैरेक्टरिस्टिक्स कह ले, इसके फीचर्स क्या है, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स। ठीक है, क्या इससे क्या होगा ये मैं आपको बाद बताऊंगी। होमोजीनियस प्रोडक्ट सेल करते हैं हर एक। ठीक है, और नंबर 3 होता है नो वन कैन इफेक्ट प्राइस। नंबर 4 क्या है, फ्री एंट्री एंड एग्जिट। अब ये क्या है, देखो, इफ देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स एंड नंबर ऑफ बायर्स, इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ सेलर्स ज्यादा है, इसका मतलब है इफ देयर आर सम सेलर्स हु डजंट वांट टू प्रोवाइड the output in the market, so the other seller are there, so exit of any of the seller would not affect the supply in the market and therefore no effect on price. Similarly, number of buyers are there. If some buyer exit the market, it does not mean that there are unsold stocks and variation in price. So since the number of buyers, there are number of buyers, so the product being supplied by the supplier in the market will be sold, and there will be never be any problem of shortage and surplus, so there will be no effect on price. So what will happen, ke price will remain the same. ठीक है, will remain the same, ना ही कोई seller, so the price will remain the same. उसके बाद each one is selling homogeneous product. There is no difference in any of the product being produced by any of the firm. ठीक है जी, so no firm can charge a different price based upon the differences in features. So every firm is selling a same brand. No one can affect price. Definitely, if there are number of sellers, so there is no and buyers, so there is no problem of shortage and surplus. And definitely, since the sellers are selling homogeneous product, so all these features actually come up with one point, no one of the seller or a buyer can affect the price, and everyone will be selling at the same price, and that price would be enough to cover their cost, and they all they will be selling at a very low price because of there are number of sellers are there, so no, they won't be able to charge a very high price. तो परफेक्ट कंपटीशन की खास बात होती है कि प्राइस होती है very low, price is low. Okay, and the last feature is free entry and exit. In fact, किसी भी बिजनेस के अंदर एंटर और एग्जिट करने की कुछ कॉस्ट पे करना पड़ती है, बट फॉर सिंप्लिसिटी रीजन वी आर assuming that anybody who wants to exit can exit the market, and those who want to enter can enter the market. There is no cost involved in it. और सबसे important जो फैक्टर है जो इन तीन की वजह से आता है, that is firms
are price taker. Price taker मतलब they cannot influence the price, they cannot make the price, they will have to see the what price is being prevailing in the market, and at that price they would have to sell their product. ठीक है जी. And if they find it profitable, they will stay. If they find it that they're facing losses, they can exit the market. Entry and exit has no cost. ठीक है जी. तो अगर ये सारी फीचर्स हो तो हम इसे कहते हैं परफेक्ट कंपटीशन. परफेक्ट कंपटीशन में अब अगर हम देखें तो प्राइस टेकर बिहेवियर का मतलब ये है कि जो एक मार्केट होती है, यहाँ पर आपके पास क्वांटिटीज है, यहाँ प्राइस है, ये मार्केट की डिमांड है, ये पूरी मार्केट की सप्लाई है. ठीक है, ये है मार्केट. मार्केट है, पूरी मार्केट है, और उसके नतीजे में एक प्राइस डिटरमिन होती है जो कि सारे सप्लायर और डिमांडर की वजह से फिक्स होती है. और जब हम एक इंडिविजुअल फर्म की बात करते हैं, मार्केट इज द सम ऑफ इंडिविजुअल फर्म्स. इंडिविजुअल फर्म्स जो है वो क्या देखती है कि what is the price which is being prevailed in the market by the intersection of supply and demand. So they will consider as given, and they will say okay, this is the price which is prevailing in the market. And if they want to sell quantities, so let's say small q represent the production being done by firm in the perfectly competitive industry. So let's say वो पहला यूनिट बेचेगा, so he will have to sell it at P bar which is being set by market. सेकेंड यूनिट भी उसी प्राइस पे, थर्ड यूनिट भी उसी प्राइस पे. सो द फर्म का जो डिमांड फंक्शन होता है, इसको हम स्मॉल डी कह देते हैं. फर्म के डिमांड फंक्शन को डी सबस्क्रिप्ट फर्म, वो हॉरिजॉन्टल होता है. इट्स कॉल्ड प्राइस टेकर बिहेवियर. इट्स कॉल्ड प्राइस टेकर बिहेवियर. ठीक है जी. अब क्या है कि हमारे पास एक फर्म है और हम वी आर ट्राइंग टू सी देयर इज अ फर्म इन द परफेक्टली कंपेटिटिव इंडस्ट्री जिसके अंदर प्राइस टेकर बिहेवियर है. हर फर्म जो है वो एक सर्टेन प्राइस के ऊपर, जो कि मार्केट सेट करती है खुद, उसके ऊपर वो अपनी क्वांटिटी सोल्ड कर रही है. तो हाउ द प्रोडक्शन डिसीजन will take place फॉर ए फर्म. कि फर्म जो है वो कैसे डिसाइड करती है कि उसने कितनी प्रोडक्शन करनी है और वो प्रॉफिट कैसे अर्न करती है. इसके लिए अगर मैं इस फर्म का यहाँ पे ये क्यू है, क्योंकि फर्म है तो हम स्मॉल क्यू कह रहे हैं, यहाँ पे सारी कॉस्ट और रेवेन्यू सब कुछ आएंगे. ठीक है, तो फर्म जो है उसका डिमांड फंक्शन जो है वो ऐसे है. यानी फर्म की प्रोडक्ट की डिमांड कैसे है कि ये एक पी बार है जो मार्केट ने सेट कर दी है. अब फर्म को अगर 1 यूनिट सेल करना है या 100 यूनिट सेल करने हैं, दे विल हैव टू सेल एट द सेम प्राइस. ठीक हो जी, ठीक हो गया जी. अब ये हमारे पास हो गया. तो अगर लेट्स से फर्म जो है वो लेट्स से दे स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग द यूनिट नंबर 1, पहला यूनिट है, ठीक है जी, उसको उन्होंने सेल करना है मार्केट में. तो दे गो टू द मार्केट एंड आस्क फॉर that they want to sell it. So what they will sell that product, and in return what they will get, the given P bar. तो इसी तरह से भी जब वो नेक्स्ट यूनिट सेल करेंगे, अगेन दे विल गेट P bar. So what P bar? P bar is the revenue they will get by selling an additional unit. So P bar is revenue they receive by selling an additional यूनिट. तो अगर इस तरह का ये जो डेफिनेशन है, अगर आप इसे गौर करें तो ये बेसिकली MR की डेफिनेशन है, मार्जिनल रेवेन्यू. व्हाट इज MR? MR इज डिफाइंड एज चेंज इन टोटल रेवेन्यू बाय सेलिंग वन मोर यूनिट इन द मार्केट. तो ये P बार की अगर अब फर्म जो है वो एक और यूनिट सेल करती है तो उसके रिटर्न में उसे क्या मिलेगा? प्राइस मिलेगी. और वो प्राइस क्या है? वो उसका रेवेन्यू है. वो किस चीज का रेवेन्यू है? द रेवेन्यू दे विल जनरेट बाय सेलिंग अ यूनिट इन द मार्केट. सो MR यहाँ पे प्राइस. तो ये जो D है डिमांड फंक्शन, यही इसका MRB है. ठीक है. अच्छा, अब ये देखें कि ये जो फर्म है इसका जो है वो MR ये है. सपोज करो इस फर्म ने यूनिट सेल किए 100, ठीक है जी, और मार्केट जो प्राइस प्रिवेल कर रही थी वो थी 10. ठीक है, तो टोटल रेवेन्यू उसने कितना अर्न किया? टोटल रेवेन्यू उसने किया 10 into 100 विच इज इक्वल्स टू 1000. ठीक है जी. तो व्हाट इज एवरेज रेवेन्यू देन? एवरेज रेवेन्यू होता है टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड. तो टोटल रेवेन्यू है 1000 और नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड है 100, तो आंसर आया 10.
और ये 10 क्या है, ये वही प्राइस है जो कि मार्केट में प्रीवेल कर रही है, जो हमने एज्यूम की हुई है। तो अगर मतलब इफ दे प्रोड्यूस 1 यूनिट, दे सेल इन द मार्केट, इन रिटर्न दे विल गेट दैट $10 विच इज MR। और फिर AR भी वही निकला। तो हम क्या कह सकते हैं कि जो डिमांड फंक्शन है यही MR है और यही फर्म का AR है। तो अब MR AR जो सब पता चल गए। अब इसके अलावा इफ यू रिमेम्बर टोटल कॉस्ट और एवरेज कॉस्ट कैसे होती है, ऐसी ही होती है ना। एवरेज कॉस्ट मैं पीछे से बोरो कर रही हूँ। और मार्जिनल कॉस्ट कैसी होती है, ये मार्जिनल कॉस्ट होती है। ठीक है। तो व्हाट, ये सारे कर्व्स हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि ये हमें बताएंगे, दे विल टेल अस दैट हाउ मच टू सेल, what level of quantity to be sold to maximize profit। दिमाग में क्या रखना है, प्रॉफिट क्या है, TR माइनस TC। अच्छा, कैसे एनालिसिस होता है, लुक, जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग what conditions, what is the condition for profit मैक्सिमाइजेशन, क्या कंडीशन है, कंडीशन आप याद कर लो, इसकी डेरिवेशन है, मगर मैं अभी थोड़ा सा लॉजिक से एक्सप्लेन करूंगी, मैं पूरी डेरिवेशन नहीं कर सकती। सो जस्ट फॉर अ टाइम बिंग एज्यूम कि ये कंडीशन है, MR इज इक्वल्स टू MC। मैं इसको एक्सप्लेन भी करती हूँ कि ये कंडीशन क्यों है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन की। MR क्या चीज होती है, MR होती है द एडिशनल रेवेन्यू यू विल गेट वंस यू सेल दैट 1 यूनिट इन द मार्केट, और जो यहाँ पे $10 के बराबर है। MC क्या होता है, MC होता है द एडिशनल कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग समथिंग। आप सपोज करो कि जो फर्म है उसने एक यूनिट प्रोड्यूस किया, ठीक है, उसको जो प्रोड्यूस करने की जो कॉस्ट आई वो थी MC। ठीक है, एक 1 यूनिट प्रोड्यूस्ड कॉस्टिंग MC। अब उसी यूनिट को जब मार्केट में सेल किया, उसको सेल किया, तो उससे क्या मिलेगा, MR। ठीक है, अब उसके सामने दोनों चीजें हैं, द कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग इज MC, द रेवेन्यू दे जनरेट इज MR। अच्छा, अब अगर सपोज करें कि MC जो है वो लेस देन है MR, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है जो यूनिट उसने प्रोड्यूस किया उस पर उसको रेवेन्यू तो ज्यादा मिला है और कॉस्ट उसकी कम है। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है प्रॉफिट, क्योंकि उसने रेवेन्यू ज्यादा अर्न किया है और कॉस्ट कम पे करना पड़ी है। तो अगर उसको पॉजिटिव प्रॉफिट नजर आएगा तो क्या करेगा, ज्यादा प्रोडक्शन करेगा या ही विल स्टॉप। डेफिनेटली मोर प्रॉफिट मींस मोर प्रोडक्शन, दिस इंप्लाइज मोर प्रोडक्शन। ठीक है जी। अब मोर प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, नेक्स्ट यूनिट पे वो देखेगा कि व्हाट इज MC, व्हाट इज MR, एंड इफ स्टिल ही फाइंड दैट दिस इज द सिचुएशन, ही विल गो फॉर मोर प्रोडक्शन। एंड देन लेट्स से एक सिचुएशन ऐसी आती है जहां पे MC जो है वो MR के बराबर हो जाता है। तो व्हाट डज इट मीन कि जितनी कॉस्ट उसको पड़ी उतने ही रेवेन्यू पे वो सेल कर रहा है। इसका क्या मतलब है, शुड ही प्रोड्यूस, यस ही शुड, ये यहाँ पर उसको कोई लॉस नहीं है तो उसको यहाँ भी प्रोड्यूस करना चाहिए। लेकिन अगर एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहां पे MC एक्सीड कर जाता है MR से, तो डू यू थिंक दैट ही शुड प्रोड्यूस दैट यूनिट, नो। तो इसका मतलब है ही शुड नॉट स्टॉप if marginal cost is lesser than MR, he should not produce to the point where MC exceeds MR. So what is the point which makes him decide that this is the level he should produce? Only this situation. So he should keep on producing till he get the situation that MR is equals to MC. जब उसको ये situation मिल जाती है, he should decide, he should stop at that point. Suppose ये 10 यूनिट प्रोड्यूस करने पे ये सिचुएशन आ गई, तो this condition makes him decide that the total production of this firm should be equals to 10 units. क्यों, क्योंकि ये वो पॉइंट है जिसके ऊपर MR is equals to MC हो जाएगा। पिछले जो 9 यूनिट्स थे 1 से लेके 9 तक, उस पे MR एक्सीड करेगा MC से, इस वाले के ऊपर MR होगा MC के बराबर, और इसके आगे अगर हम 11 और ऑनवर्ड जाएंगे तो MC एक्सीड कर जाएगा MR से। तो he should not stop here, he should not go there. So the right time to decide, right point to decide is the point he should produce till a level such that he is able to get MR is equals to MC. अभी मैंने इसको आपको थ्योरेटिकली एक्सप्लेन किया, मैं इसको ग्राफ में आपको दिखाती हूँ। लुक, ये जो पूरी लाइन है, ये पूरी लाइन MR की लाइन है, और ये जो कर्व है ये MC का कर्व है। ये मैंने पीछे से बोरो किया, ये मैं पढ़ा चुकी हूँ। और ये क्यों क्या है, ये प्रोडक्शन की यूनिट्स हैं, इसका मतलब है जीरो प्रोडक्शन।
इसका मतलब है 1 प्रोडक्शन, 2 प्रोडक्शन, 3 प्रोडक्शन. ओके, अब इसको चेक करें जरा. प्रोडक्शन, इफ ही प्रोड्यूसेस दिस 1 यूनिट, द फर्स्ट यूनिट इज बीइंग प्रोड्यूस्ड, तो इसको मार्केट में जब वो सेल करेगा, हाउ मच रेवेन्यू ही विल गेट. वेल, एक यूनिट को प्रोड्यूस करने से जो उसको रेवेन्यू मिलता है वो प्राइस. तो वो ये जो हाइट है, ये सारी की सारी इसका एमआर शो कर रहा है. हाउ मच कॉस्ट ही विल हैव टू फेस इफ ही इज प्रोड्यूसिंग इट एट द सिचुएशन. तो इसी लाइन को हम बढ़ाएंगे एमसी तक. एमसी ये आ रहा है. ओ, एमसी यहाँ पर एमआर से ज्यादा है, तो ये लॉस है. शुरू में बिजनेस में हमेशा लॉस होता है. जब भी आप स्टार्ट करते हैं बिजनेस, तो आपकी कॉस्ट एक्सीड करती है आपके रेवेन्यू से, और फिर एक पॉइंट आता है जहां पर एमआर और एमसी बराबर हो जाते हैं. अभी आप देखो कि ये वाला यूनिट, जो नेक्स्ट यूनिट है, ये भी प्रोड्यूस करने में, ये जो देखो, ये एमसी जहां तक एमआर से ऊपर है वो लॉसेस है. तो ये लॉस है, ये लॉस है, ये लॉस है. ये क्या है? ये है एमआर इज इक्वल टू एमसी. तो यहां तक प्रोडक्शन करनी चाहिए. आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है. अगर वो नेक्स्ट यूनिट प्रोड्यूस करता है, तो ये देखो गैप क्या नजर आ रहा है. ये पॉइंट है एमआर का और ये पॉइंट है एमसी का. एमआर एक्सीड कर रहा है एमसी से. इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो इस पॉइंट पे स्टॉप करेगा तो वो लॉस करेगा, क्योंकि अगला वाला पॉइंट उसको प्रॉफिट दे रहा है. इससे पीछे तो लॉसेस ही लॉसेस थे. यहाँ पर वो ब्रेक इवन में आया है, जहाँ पे उसके लॉसेस नहीं है और प्रॉफिट भी नहीं है, लेकिन उसके आगे के यूनिट्स प्रॉफिटेबल है. इसका मतलब है ही शुड नॉट स्टॉप हियर. तो इसका मतलब है जो मैंने आगे बात बताई थी पीछे कि एम आर इज इक्वल टू एम सी इज द डिसीजन पॉइंट, तो ये तो गलत लग रही है ना इस ग्राफ से. तो जरा फर्दर एक्सप्लोर करते हैं कि प्रॉफिट्स कहाँ तक जा रहे हैं. ये देखो, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है. मतलब देखो, ये रेवेन्यू है, ये कॉस्ट है, ये रेवेन्यू, ये कॉस्ट है. ठीक है जी. ये कॉस्ट नहीं, ये कॉस्ट है, सॉरी, ये कॉस्ट है. एमसी को देखना है ना, हमें एमसी पे रुक रही थी. तो कहाँ तक ये डिफरेंसेस जा रहे हैं पॉजिटिव? ये यहाँ तक. यहाँ पर क्या हो रहा है? यहाँ पे एमसी और एमआर कट कर रहे हैं. तो क्या ये कंडीशन एमआर इज इक्वल्स टू एमसी है? यस. तो जो मैंने वहां भी बात की थी ना, वो मैंने इस पॉइंट की बात की थी. मैंने पॉइंट बी की बात की थी, ए की नहीं की थी. ए ब्रेक इवन कहलाता है और वी कॉल दिस पॉइंट एज पॉइंट वेयर द फर्म शुड स्टॉप. व्हाई शुड स्टॉप? लुक, इसके आगे जाएगा, इससे नेक्स्ट यूनिट अगर यहाँ से ज्यादा, यानी इसको क्यू स्टार कह दो, इसको इतना प्रोड्यूस करना चाहिए, इस पे प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाएगा, राइट. इससे ज्यादा जाएगा तो क्या होगा? इससे ज्यादा पे एमसी एक्सीड कर रही है फिर एमआर से, और जैसे जैसे वो प्रोडक्शन इंक्रीज करता जाएगा, एमसी इज गेटिंग लार्जर देन एमआर, एंड दैट्स अ लॉस इज इंक्रीजिंग. तो व्हाट डज इट मीन? ही शुड प्रोड्यूस टिल पॉइंट बी where the firm is producing Q star, and how much revenue they are earning. They are earning the level of revenue they are earning. Look, the firm is producing Q star and selling it at price. तो ये आपका क्या आ गया? टोटल रेवेन्यू ऑफ द फर्म. मार्जिनल रेवेन्यू क्या चीज होती है? प्राइस होती है. प्राइस से मार्जिनल. एवरेज रेवेन्यू क्या चीज होती है? वो भी प्राइस होती है. ठीक है जी. और ये सारी सिचुएशन वो है जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी है. So this is called condition for profit maximization. ठीक है जी. तो ये था परफेक्ट कंपटीशन. ओके, तो जो मेन फीचर्स है परफेक्ट कंपटीशन के, वो मैं अब दोबारा से आपको रिवाइज कर देती हूँ. कंपटीशन के नंबर 1, प्राइस टेकर, फर्म इज प्राइस टेकर. नंबर 2, होमोजीनियस प्रोडक्ट. नंबर 3, नंबर ऑफ सेलर्स एंड बायर्स. और नंबर 4, फ्री एंट्री एंड एग्जिट. और इस सारी चीजों से होता क्या है? प्रॉफिट मैक्सिमाइज कब होता है? जब एम आर इज इक्वल्स टू एम सी हो, जब ये हो. और प्राइस क्या होती है यहाँ पे? प्राइस और एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू सेम होते हैं. तो ये इसके मोटे मोटे फीचर्स आ गए. इसका जो ग्राफ अगर बनाएंगे तो आपको स्मॉल क्यू कर दो, यहाँ पे आप डॉलर लिख दो, क्योंकि रेवेन्यू और कॉस्ट सारे डॉलर्स होते हैं. ये आप कह दो पी बार है, जो कि ए आर भी है, एम आर भी है, और ये डिमांड फंक्शन भी है. ये आपका जी आपका चल रहा होता है एम सी. मैंने ये डिक्रीजिंग पोर्शन नहीं बनाया, सिर्फ इंक्रीजिंग बनाया. और ये वो पॉइंट है जहाँ पे एम आर इज इक्वल टू एम सी होता है. और ये वो क्वांटिटी है क्यू स्टार जिसको प्रोड्यूस करनी चाहिए. और क्यू स्टार को जब आप पी के साथ मल्टीप्लाई करते हो, तो ये सारा एरिया जो नजर आ रहा है ना, ये एरिया क्या रिप्रेजेंट करता है? ये टोटल रेवेन्यू का एरिया. ठीक है जी. इसमें फर्दर एवरेज कॉस्ट भी आ सकती है, टोटल कॉस्ट भी, लेकिन मैं इसको कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाह रही. सो दिस इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन.
अब दूसरा जो एक्सट्रीम है वो है मोनोपोली। मोनोपोली क्या होती है? जिसमें सिर्फ एक सिंगल सेलर होता है, ठीक है, ये सिंगल सेलर होता है। अब ये मोनोपोली क्यों होती है, इसके मैनी रीजंस हैं, वो मैं आगे बताऊंगी। अभी मोनोपोली को हम सिर्फ कंटिन्यू करते हैं इसी कॉन्टेक्स्ट में। मोनोपोली इज अ सिंगल सेलर, और इसमें होमोजीनियस प्रोडक्ट नॉन होमोजीनियस प्रोडक्ट की बात ही नहीं, क्योंकि एक ही सेलर है जो प्रोड्यूस करे। और दे आर नॉट प्राइस मेकर, दे आर नॉट प्राइस टेकर, दे आर प्राइस मेकर्स, अपनी मर्जी से प्राइस लेते हैं, ठीक है जी। और ये फीचर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर इसका ये है। अच्छा, अब प्राइस मेकर है तो वो क्या करेगा, यहाँ पे देखो, ये है क्वांटिटी और ये है प्राइस, ठीक है। ये है डिमांड फंक्शन। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि सिंस द पर्सन इज प्राइस मेकर, तो वो कंज्यूमर से they will ask the price of whatever the price they want, suppose, and what price they will ask for, they will look at the willingness of the consumer to pay। तो क्या करेगा, लेट्स से उसने ये प्राइस रखी, ठीक है, इस पे क्वांटिटी डिमांड कितनी है, 0, ये बहुत हाई प्राइस है, इस पे कोई भी खरीद नहीं रहा, ठीक है। उसके बाद उसने प्राइस को थोड़ा सा कम किया, सो इफ ही इज सेलिंग 1 यूनिट, सो ही व्हाट ही इज लुकिंग एट कि कौन मुझे सबसे ज्यादा प्राइस दे सकता है, तो वो ये वाला यूनिट उस प्रोड्यूस कंज्यूमर को जाएगा विच हु कैन पे द हाईएस्ट प्राइस। तो हमें कैसे पता चलेगा, वो ये है डिमांड फंक्शन विच शोज द विलिंगनेस टू पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट यूनिट इज सोल्ड एट P1, सेकेंड यूनिट इज सोल्ड एट P2, ये किसी और कंज्यूमर को जा रहा है who has this much willingness to pay, and each unit is being sold at a different price, P3, ठीक है। तो ये हमारे पास होता है मोनोपोली सिचुएशन। तो इसका डिमांड फंक्शन जो होता है मोनोपोलिस का, वो नेगेटिव स्लोप होता है, क्योंकि ये प्राइस मेकर है, ठीक है जी। तो यहाँ पर अगर आप लिख लो Q, यहाँ पे आप लिख लो डॉलर, यहाँ पर आप लिख लो ये डिमांड फंक्शन है, यही आपका एवरेज रेवेन्यू फंक्शन होता है। और इसमें जो मार्जिनल रेवेन्यू फंक्शन होता है वो इसके नीचे होता है, और वो नीचे कट कर जाता है, और MC जो है वो इसी तरह से यही शेप है। तो प्रोडक्शन कहाँ डिसाइड होती है, हमेशा उसी पॉइंट पे जहाँ पे MR इज इक्वल्स टू MC है, ये। तो प्रोडक्शन डिसीजन जो है उसकी कंडीशन क्या होती है, हमेशा हर मार्केट स्ट्रक्चर में MR इज इक्वल्स टू MC होती है। और प्राइस डिसीजन किस चीज़ पे होता है, प्राइस डिपेंड करती है, प्राइस इज डिसाइडेड बेस्ड अपॉन एवरेज रेवेन्यू। तो एवरेज रेवेन्यू प्राइस डिसाइड करती है, क्योंकि परफेक्ट कंपटीशन में AR और MR और प्राइस सेम ही होती है, तो वही प्राइस है, वही MR है, वही CR। लेकिन मोनोपोली के अंदर MR और AR डिफरेंट होते हैं, MR ऊपर होता है, AR नीचे, AR ऊपर होता है, MR नीचे होता है। तो ये जो है पॉइंट है जहाँ पे MR और MC मीट कर रहे हैं, तो ये आपका क्वांटिटी डिसीजन पॉइंट है। और क्वांटिटी कितनी प्रोड्यूस करेगा मोनोपोलिस्ट, QM, ठीक है। और प्राइस कितनी चार्ज करेगा, प्राइस जो है वो AR के हिसाब से होती है। तो वेयर इज AR, इट राइट हियर, ये है, देखो इस क्वांटिटी का कितना AR है, इतना, तो प्राइस चार्ज होगी ये वाली, ये प्राइस ऑफ मोनोपोली है, ठीक है। तो मोनोपोली में जो है वो प्राइसेस ज़्यादा चार्ज होती है। अब ये मोनोपोली होती क्या और क्यों होती है? पाकिस्तान के अंदर मोनोपोली की जैसे मैंने एग्जांपल दी कि वापडा है, या ऐसे वो सारी चीज़ें जो कि सिंगल सेलर के पास है। अब उसकी रीजंस क्या होती है, मोनोपोली होती क्यों है? मोनोपोली की 4-5 रीजंस होती हैं, ठीक है। बाज़ वक़्त मोनोपोली इसलिए होती है कि कुछ टेक्नोलॉजिकल प्रोसेस ऐसे होते हैं जिसके अंदर देयर इज जस्ट वन सेलर जो है वो ही इज़ बेटर टू एंड शुड बी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल वापडा की अगर मैं एग्जांपल लूँ, तो वर्डा इज इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर। तो इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने में यू विल नीड इंफ्रास्ट्रक्चर विच इज़ टू बी इंस्टॉल्ड इन एनी लोकेलिटी। तो अगर सपोज करो कि एक लोकेलिटी में, एक गली में 10 घर हैं एंड देयर आर मैनी सेलर्स, तो क्या होगा, ईच हाउस विल बी आस्किंग फॉर different company to provide the electricity, and what will happen that every next day there is a digging process to insert the infrastructure and all, और उससे क्या होगा कि it's a chaos. So it's better if one firm should be providing everything. Second, production, this kind of production is containing a very heavy cost, and not every firm would be able to, so if some firm has heavy cost of production, so it's better that most of the production should be done by that particular firm so that they can afford to do it,
as they all the buyers will buy the product from them, and then they will have the feasibility and opportunity to produce. क्योंकि अगर सोचें कि एक चीज़ है जिसका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपेंसिव है और उसको बहुत सारे लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो ऑफ कोर्स द टोटल सेगमेंट ऑफ द कंज्यूमर इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द सेलर्स, और जब सेलर्स हर एक के पास कम सेलर्स होंगे तो दे वुड नॉट बी एबल टू मेक सच अ प्रॉफिट विच इज required to have a huge huge financial need for the infrastructure to be provided. समझ आ रही बात की कि जब आपका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत एक्सपेंसिव हो तो बेहतर है कि एक कंपनी प्रोड्यूस करे ताकि वो सारे सेलर्स को केटर करे और दे आर एबल टू प्रोड्यूस जनरेट दैट मच ऑफ बेनिफिट सच दैट दे कैन प्रोड्यूस दैट प्रोडक्ट और उनके पास इतनी कैपेसिटी हो। तो इसीलिए इसको मोनोपोली होना ज़रूरी है। इस तरह की सिचुएशन को हम कहते हैं कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट and it's called natural monopoly. So natural monopoly is a situation where single seller is better off producing the product, and if one firm is producing, so they would be having for more further production, for higher production, they would have lower cost as compared to if many firms are producing. This is called natural monopoly. Natural, okay. दूसरी होती है टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली. टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली का मतलब होता है कि अगर कोई फर्म टेक्नोलॉजिकली बेटर है और साउंड है, या दे हैव इनोवेटेड और इमिटेटेड some sort of technology, so since that is the only firm which has this technology, so they become monopolist. जैसे कि जब माइक्रोसॉफ्ट आया था तो माइक्रोसॉफ्ट जो है वो बाय बिल गेट्स, तो उस टाइम पे बिल गेट्स जो था वो मोनोपोलिस्ट था या टेक्नोलॉजिकल मोनोपोलिस्ट था। ठीक है जी। उसकी तीसरी चीज होती है ज्योग्राफिकल मोनोपोली. ज्योग्राफिकल मोनोपोली का मतलब है कि एक प्रोडक्शन यूनिट ऐसा है विच इज द ओनली यूनिट अवेलेबल इन दैट ज्योग्राफी, तो वो उसकी वजह से, क्योंकि देयर इज नो अदर सेलर हु इज प्रोड्यूसिंग दिस प्रोडक्ट, तो दैट बिकम्स मोनोपोली ड्यू टू ज्योग्राफी, ज्योग्राफिकल मोनोपोली. जैसे कि डेजर्ट के अंदर कोई शॉप हो जो पानी सेल कर रही हो, there's just one shop, so in that geographical location that particular market yes shop is a monopoly. ठीक है जी। और इसके अलावा चौथे टाइप की होती है इनोवेशन से इनोवेटिव मोनोपोली. लेट मी सी इट, थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे. So here we have non-price, just a minute, types of monopolies. Okay, नेशनल मोनोपोली हो गया, ज्योग्राफिक मोनोपोली हो गया, और क्या मैंने बताना था, टेक्नोलॉजिकल मोनोपोली भी हो गया, और चौथी पांच नहीं है, चार ही है, गवर्नमेंट मोनोपोली. गवर्नमेंट मोनोपोली क्या चीज होती है? गवर्नमेंट मोनोपोली होती है कि बाज़ औक़ात गवर्नमेंट जो है किसी एक फर्म को लाइसेंस देती है या उसको उसके राइट्स देती है कि वो प्रोडक्शन करे. ठीक है। और इफ दिस इज only one firm is selling because they have license to do it, so this is a monopoly because of government permission. ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी कंपनीज होती हैं जिनको लाइसेंस मिले होते हैं और वो सिर्फ वही प्रोड्यूस कर सकती हैं. जैसे कि जितनी भी ब्रांड्स हैं दे आर लाइसेंस्ड. ठीक है। तो आप खाड़ी के नाम से दूसरी शॉप नहीं लगा सकते. दिस इज ओनली खाड़ी हु कैन प्रोड्यूस इट. सो खाड़ी इज मोनोपोलिस्ट इन इट्स ओन ब्रांड. ठीक है। तो ये हो गया मोनोपोली. सो वी आर डन विद अ परफेक्ट कंपटीशन इन मोनोपोली. मूविंग ऑन, तीसरा वाला केस जिसके अंदर दो सेलर्स हो, टू सेलर्स वाला केस, दिस इज कॉल्ड डिओपली. तो डिओपली या ट्रिओपली, दे ऑल टुगेदर कॉल्ड ऑलिगोपली. ऑलिगोपली. ऑलिगोपली क्या चीज होती है? 2 से लेके 15 तक फर्म्स होती हैं जो कि टोटल प्रोडक्शन कर रही होती है. ठीक है जी। अब ऑलिगोपली की अगर सपोज करो 2 फर्म्स हैं, तो 2 फर्म्स अगर हम बात करते हैं, 2 फर्म्स जो है उनमें क्या फीचर्स होते हैं? दे हैव स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस. स्ट्रेटेजिक इंटरडिपेंडेंस, इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि दे आर एक्चुअली इंटरडिपेंडेंट टू ईच अदर फॉर एवरी पॉलिसी. अब सपोज कर लो कि हम इसमें एग्जांपल ले लेते हैं कि 2 मोबाइल कंपनीज हैं और मार्केट में सिर्फ 2 ही मोबाइल कंपनीज हैं. एक का नाम है जी मोबाइल कंपनी का एक का नाम है नोकिया और एक का नाम है सैमसंग. ठीक है। ये 2 ही कंपनीज हैं. अब सपोज करो नोकिया ने एक प्रोडक्ट लॉन्च करना है,
सो उस प्रोडक्ट को लॉन्च करने के लिए they would have to see कि what Samsung is doing. So let's say they're assuming that the same type of product it could have been launched by Samsung. So उस प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो क्या होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए या लो होनी चाहिए, उसके फीचर्स क्या होने चाहिए. नोकिया इस डिसीजन लेने के लिए दे वुड लुक अपॉन सैमसंग. दिस इज कॉल्ड इंटरडिपेंडेंस. ठीक है जी. और इसमें जो है पॉसिबिलिटी है प्राइस वॉर की. प्राइस वॉर का मतलब है कि लेट्स से प्राइस वॉर का मतलब है कि लेट्स से अगर नोकिया जो है वो अपनी प्रोडक्ट की प्राइस को डिक्रीज करता है, सो इट इज क्वाइट पॉसिबल दैट सैमसंग विल फॉलो इट. अगर सैमसंग फॉलो करेगा तो इसका मतलब है कि प्राइस जो है वो फर्दर डिक्रीज करेगा. और जब सैमसंग जो है अपनी प्राइस को डिक्रीज करेगा, सो लुकिंग एट दिस, क्योंकि यहाँ पे म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस है, तो नोकिया फर्दर डिक्रीज करेगा. सो कीप ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस एंड अल्टीमेटली दे एंड अप इन अ सिचुएशन वेयर दे इवन आर नॉट एबल टू फुलफिल देयर लॉसेस. तो जो है इसका ये स्पेशल फीचर है कि इसमें प्राइस वॉर हो सकती है स्ट्रेटेजी, और ये स्ट्रेटेजिकली इंटरडिपेंडेंट है आपस में. इसके अलावा और क्या इंपॉर्टेंट फीचर है इसका, जस्ट अ मिनट मैं भी देख के बताती हूँ. या दैट्स इट, राइट. सो इसमें बस दिस इज इनफ. और इसके अंदर जो है फर्दर जो डिसीजन होते हैं, क्वांटिटी डिसीजन हो जाते हैं, वो होते हैं MR इज इक्वल्स टू MC. सेम स्टोरी. इसके ग्राफ थोड़े मुश्किल है तो वो हम इसको नहीं करेंगे. सो दैट इज ऑल फ्रॉम ओलिगोपोली. क्या इंपॉर्टेंट फीचर है, 2 से 15 फर्म, 2 है तो डिओपली, ट्रायोपली और ओलिगोपोली. They have strategic interdependence and there is a possibility of price war. Decision of quantities are always done MR is equals to MC. चौथे पे आ जाते हैं monopolistic competition. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में 2 वर्ड है, एक मोनोपोली और एक कंपटीशन. इट्स कॉल्ड कंपटीशन बिकॉज देयर आर नंबर ऑफ सेलर्स फॉर द प्रोडक्ट्स, एंड इट्स कॉल्ड मोनोपोली बिकॉज ईच सेलर इज सेलिंग a differentiated product. differentiated समझते हैं, different features के साथ. ये क्या, ये कौन सी एग्जांपल है मार्केट के अंदर, जैसे जितनी भी गारमेंट्स की ब्रांड्स हैं वो क्या है, देयर आर खाड़ी, बोनेंजा, अलकरम, सरा सफीनास, ये सारी ब्रांड्स हैं, बहुत ज्यादा ब्रांड्स हैं. ठीक है, तो नंबर ऑफ सेलर्स आर देयर बट ईच ब्रांड हैज their loyal customer. So customer has loyalty to their brand, and for their customer they are monopolist because of the differentiated features they are having. ठीक है जी. और लेकिन क्योंकि सेलर्स बहुत ज्यादा है, एक सेलर नहीं है, तो हम इसको कंपटीशन भी कहते हैं क्योंकि बहुत सारी ब्रांड्स हैं जो कि कम्पीट कर रही हैं. बट क्योंकि हर ब्रांड जो है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट के साथ आ रही है, तो इसलिए हम उसको मोनोपोलिस्ट भी कह सकते हैं. सो द फर्म्स आर मोनोपोलिस्ट इन देयर कस्टमर्स. दे क्योंकि उनके कस्टमर डोंट बाय एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी एल्स, दे आर लॉयल टू देयर प्रोडक्ट. तो यहाँ पर जो है मोनोपोली भी है और कंपटीशन भी है. और इसमें जो खास बात होती है कि क्योंकि दे हैव डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स, सो एवरी फर्म वांट्स टू एडवर्टाइज देयर डिफरेंशिएशन. सो इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट जो है वो एक नेगेटिव फीचर है जो कि बहुत ज़्यादा ऐड हो जाती है और इट डेफिनेटली इफेक्ट्स प्राइसेस, और इसकी वजह से प्राइस इंक्रीज होती है. इसीलिए आपने देखा होगा ब्रांड जो है दे वेरी एक्सपेंसिव, इवन दे आर नॉट वर्थ दैट प्राइस बट दे आर एक्सपेंसिव, पीपल बाय इवन एट दैट प्राइस. तो इसमें एडवर्टाइजिंग कॉस्ट इन्वॉल्व होती है जिसकी वजह से वो एक्सपेंसिव रहती है. इसमें भी क्वांटिटी डिसीजन या प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग डिसीजन का जो रूल है वो है MR इज इक्वल्स टू MC. हर एक के अंदर MR MC ही होता है. ठीक है जी. और इसमें फर्दर मैं और डिटेल्स में नहीं जाऊंगी क्योंकि अगेन थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट. तो so far we have completed regarding what we have to cover about the microeconomic theory. We started with basic of consumer के consumer कौन होता है, वो क्या करता है, वो utility क्या होती है, उसकी maximization कैसी होती है वगैरह वगैरह. income effect, substitution effect, elasticity क्या होती है, income elasticity. उसके बाद वो consumer के बाद we moved on to the producer and then we talked about supply function, law of supply and all, and then we talked about the market in which the both are interacting. तो फिर हमने बात की थी
कि सप्लाई डिमांड की इंटरसेक्शन से इक्विलिब्रियम आता है। तो इक्विलिब्रियम का मतलब है कि जहाँ पे सप्लाई डिमांड और एग्रीड, और जहाँ पे वो एग्री नहीं करते, दिस इज कॉल्ड डिसइक्विलिब्रियम। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब शॉर्टेज या सरप्लस होता है। और शॉर्टेज एंड सरप्लस किस वजह से आता है कि अगर प्राइस जो है वो इक्विलिब्रियम से ऊपर चली जाए या नीचे चली जाए, फिर उसमें होता क्या है, उसमें फिर प्राइस में सेटलमेंट होती है। या फिर क्या हो सकता है कि मार्केट में और कौन सी सिचुएशन हो सकती है, मार्केट में ऐसी सिचुएशन हो सकती है कि आपका डिमांड फंक्शन चेंज हो जाए, शिफ्ट कर जाए, देयर आर डिफरेंट रीजन फॉर द डिमांड कर्व टू शिफ्ट, देयर आर डिफरेंट रीजन टू सप्लाई कर्व टू शिफ्ट. So there are three things can happen: either demand is shifting and equilibrium is changing, either supply is shifting and equilibrium is changing, and both are shifting and equilibrium is changing. So we are done with that part. Then we moved on to producer. The producer is another micro entity who is looking forward to maximize profit. अच्छा प्रॉफिट क्या होता है, वो टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का डिफरेंस होता है। टोटल रेवेन्यू में प्राइस टाइम क्वांटिटी है, टोटल कॉस्ट जो कॉस्ट स्ट्रक्चर है। तो हमें तीन चीजें पढ़नी पड़ी इसके लिए: प्रोडक्शन थ्योरी, कॉस्ट थ्योरी एंड प्राइसिंग डिसीजन थ्योरी। तो प्रोडक्शन थ्योरी में हमने पढ़ा टोटल प्रोजेक्ट, एवरेज प्रोडक्ट, मार्जिन, सारी डिटेल्स। इसी तरह से टोटल कॉस्ट के अंदर हमने भी वो सारी कॉस्ट की डिटेल्स पढ़ी। जब हम कंफर्टेबल हो गए उस सारी सिचुएशन को समझने के लिए, तो हमने प्राइसिंग स्ट्रक्चर पढ़ा। जो प्राइसिंग स्ट्रक्चर है वो मार्केट स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। मार्केट स्ट्रक्चर चार तरह के हो सकते हैं। एक परफेक्ट कंपटीशन होता है जिसपे प्राइसेस जो होती हैं वो टोटली सेलर के हाथ में नहीं होती, बल्कि फोर्सेस, सप्लाई ऑफ डिमांड की फोर्सेस डिसाइड करती हैं। तो हर फर्म जो है वो एक सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रोडक्शन करती है और वो नॉर्मल इनकम पर, नॉर्मल प्रॉफिट लेती है, ब्रेक इवन पर होती है। उसके बाद मोनोपोली दूसरी स्ट्रीम थी जिसमें एक सेलर होता है जो सारी मार्केट को सप्लाई करता है। उसकी चार रीजंस मैंने आपको बताई, जो कि टेक्नोलॉजिकल है, ज्योग्राफिकल है, गवर्नमेंट है और नेचुरल है। ये सारी चार रीजंस हो गई। और जो मोनोपोलिस्ट है वो प्राइसेस हाई चार्ज करता है और प्रोडक्शन कम करता है, जबकि परफेक्ट कंपटीशन प्राइसेस लो चार्ज करता है और प्रोडक्शन ज्यादा करता है। अब आगे आ जाते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली में 2 सेलर से लेके 15 सेलर तक हो सकते हैं। इसमें जो नेगेटिव चीज है वो प्राइस वॉर्स है और इसमें म्यूचुअल इंटरडिपेंडेंस होती है। और इसके बाद इसमें भी डिसीजन ऑफ प्रोडक्शन जो है वो MR=MC से होता है। चौथा जो है उस पे आ जाए, उसमें मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन है। मोनोपोली बिकॉज हर जो सेलर है वो डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वो मोनोपोलिस्ट है अपने 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 सेलर्स के लिए, अपने कंज्यूमर्स के लिए। कंपटीशन इसलिए कि देयर आर मेनी फर्म्स। सो इसमें जो गंदी बात है या ख़राब बात है विच इज़ इफेक्टिंग इससे एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, जो कि इंक्रीज होने की वजह से प्राइस बहुत बढ़ जाती है। सो थिंग्स आर वेरी एक्सपेंसिव इन दिस मार्केट। और इसमें जो क्वांटिटी डिसीजन है अगेन वो MR=MC से होता है। सो फार वी आर डन विद एनालिसिस विच वी आर रिक्वायर्ड टू डू विद द माइक्रो थ्योरी। हमने इंडिविजुअल को, हमने कंज्यूमर को डिटेल में माइक्रो लेवल पे डिस्क्राइब किया, उसको एक्सप्लोर किया एंड वी एक्सप्लोर द डिसीजन मेड बाय सप्लायर कि वो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन में वो किस किस तरह से डिसीजन मेकिंग करता है। तो माइक्रो थ्योरी जो है इट्स ऑल डन। एक छोटी सी मैं चीज जो है वो यहाँ से मैं आपको रिव्यू कर देती हूँ कि ये देखो, ये मार्केट स्ट्रक्चर जो वी स्टार्टेड विद कंपटीशन एंड मार्केट स्ट्रक्चर। सो लुक हियर, परफेक्ट कंपटीशन आई डिस्कस्ड। नेसेसरी कंडीशन वही है MR=MC, जो मैं बार बार बात कर रही हूँ। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसा होता है, ये देखो, ये है मार्केट जो सप्लाई डिमांड के साथ प्राइस डिटरमिन हो रही है। ये है MC, कहाँ पे डिसीजन हो रहा है, यहाँ पे जहाँ पे MR और MC आपस में बराबर है। बस ये वाली चीज मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे चलते हैं, ये सब कहानियां हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन पे आ जाते हैं। परफेक्ट कंपटीशन में पहला वाला है और इम्परफेक्ट कंपटीशन में मोनोपोली, ओलिगोपोली और मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन तीनों चीजें आ जाती हैं। इम्परफेक्ट कंपटीशन में आ जाए तो ये देखो आ गया जी मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, ठीक है जी। प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, नॉन प्राइस कंपटीशन, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, देखें वही कंडीशन आ रही है जो मैंने आपको बताई थी। उसके बाद आगे चलते हैं ओलिगोपोली। ओलिगोपोली होता क्या है, और ये इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर इसके अंदर होता है, जैसे मैंने आपको बताया। इसमें हाँ, इसमें एक बात रह गई थी कि इंटरडिपेंडेंट बिहेवियर होता है, लेकिन इसमें एक कोलूजन की सिचुएशन हो सकती है। कोलूजन जो होता है वो एक बेसिकली समझ लें कि एक कॉन्ट्रैक्ट होता है इनके दरमियान, के बजाय इसके कि वी आर गोइंग इनटू द प्राइस वॉर एंड एवरीबॉडी इज ट्राइंग टू डिक्रीज प्राइसेस सो दैट दे कैन अट्रैक्ट कस्टमर। इसकी बजाय लेट्स कोलूड, और वहां पर एक एग्रीमेंट होता है कि वी ऑल आर टुगेदर एंड विल सेल द प्रोडक्ट एट अ सर्टेन प्राइस, और वो प्राइस फिक्स होती है और सब उस पे ही सेल करते हैं। दैट इज कॉल्ड कोलूजन, ठीक है। उससे उनको दे आर एबल टू गेट हायर प्राइस
एज कम्पेयर टू देयर नॉट इन द collusion. कार्टेल जो है जैसे कि ओपेक ऑर्गेनाइजेशन है, दिस इज वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ collusion, जहाँ पे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंपनीज दे गेट टुगेदर एंड दे आर नाउ डिसाइडिंग अबाउट व्हाट प्राइस टू बी चार्ज एंड हाउ मच कोटा टू बी सेल. तो वो अपने कोटा को डिविएट नहीं कर सकते. ठीक है जी. प्राइस फिक्सिंग, ये देखो प्राइस फिक्सिंग आ गई. इसमें भी प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये देखें अगेन यू कैन सी MR इज इक्वल्स टू MC. ये मैं हाईलाइट कर रही हूँ यहाँ पे. ठीक है जी. आगे चलते हैं. तो ये सारा कंपनी आखिरी है मोनोपली. और मोनोपली जो मैंने आपको बताया था सिंगल सेलर होता है. और ये देखें टाइप्स ऑफ मोनोपली, जोग्राफिकल, इकोनॉमिक, टेक्नोलॉजिकल, नेचुरल, ये सारी बातें हम कर चुके हैं. गवर्नमेंट मोनोपली. ठीक है जी. तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया. और मैं जो एक चीज इसके अंदर से डिस्कस करना चाह रही हूँ वो ये वाला चार्ट है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर और परफेक्ट कंपटीशन, मोनोपोलिस्टिक, ओलिगोपोली एंड प्योर मोनोपोली. नंबर ऑफ फर्म्स, ये परफेक्ट कंपटीशन, मैनी फर्म्स, इसमें भी मैनी फर्म्स, ओलिगोपोली में फ्यू एंड प्योर मोनोपोली में वन. इन्फ्लुएंस ऑन प्राइस, परफेक्ट कंपटीशन में कोई इन्फ्लुएंस नहीं, मोनोपोलिस्टिक में होता है, पार्शियली लिमिटेड होता है बिकॉज ऑफ द फीचर्स दे हैव इनकॉर्पोरेटेड इन देयर प्रोडक्ट एंड दे आर एबल टू चार्ज हाई प्राइस. ओलिगोपोली में भी सम होता है क्योंकि जितनी ज्यादा नंबर ऑफ सेलर्स बढ़ते जाएंगे प्राइस पे कंट्रोल कम होता जाएगा. और प्योर मोनोपोली में ऑफ कोर्स वन सेलर इज डिसाइडिंग एवरीथिंग, सो एक्सटेंसिव. प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन, परफेक्ट कंपटीशन में एक होमोजीनियस प्रोडक्ट है, मोनोपोलिस्टिक में थोड़ा सा डिफरेंस है, फीचर्स डिफरेंट है, फेयर अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन. ओलिगोपोली में भी सेम सिचुएशन है. और प्योर मोनोपोली में प्रोडक्ट ही सिंगल है, फर्म ही सिंगल है, तो नो डिफरेंशिएशन कॉन्सेप्ट. एडवर्टाइजिंग, परफेक्ट कंपटीशन में एडवर्टाइजिंग नहीं होती, एवरीबडी नोज एवरीथिंग, परफेक्ट नॉलेज है लोगों के पास. मोनोपोलिस्टिक में फेयर अमाउंट ऑफ एंड ओलिगोपोली में पार्शियल अपने फीचर्स को इंट्रोड्यूस कराने के लिए, अपने कस्टमर्स को इंक्रीज करने के लिए. और प्योर मोनोपोली में कोई जरूरत नहीं. एंट्री इन द मार्केट इजी है परफेक्ट कंपटीशन में, मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में भी इजी है क्योंकि जहां भी नंबर ऑफ सेलर ज्यादा होंगे वहां पे इजी एंट्री होगी. ठीक है. ओलिगोपोली में डिफिकल्ट हो जाएगी क्योंकि नंबर ऑफ सेलर्स बहुत कम है. और प्योर मोनोपोली में होती ही एक सेलर है तो नो अदर फर्म कैन प्रोड्यूस दैट कमोडिटी. एग्जाम्पल परफेक्ट कंपटीशन की है. परफेक्ट की कोई एग्जांपल नहीं होती, ये एक यार्डस्टिक है. मार्केट में कोई भी ऐसा सिस्टम नहीं जिसको परफेक्ट कंपटीशन कह दे. ठीक है. और जो नियर इसकी एग्जांपल है वो ट्रक फार्मिंग है. हमारे पास मल्टीपल एग्जांपल है, मैंने ब्रेड की एग्जांपल दी थी, वो भी परफेक्ट कंपटीशन है. मोनोपोलिस्टिक में गैस स्टेशन है और वुमेन क्लोथिंग, ये ब्रांड्स की मैं बात कर रही हूँ. ओलिगोपोली में ऑटोमोबाइल्स, एल्यूमिनियम, ये वो इंडस्ट्रीज है जिनमें बहुत हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, तो ओलिगोपोली इज ए बेटर स्ट्रक्चर. प्योर मोनोपोली परफेक्ट जो है, प्योर मोनोपोली में मैंने आपको वापडा की एग्जांपल दी थी, यहाँ पे इन्होंने वाटर की दी है. असल में परफेक्ट कंपटीशन अपने ओरिजिनल सेंस में और प्योर मोनोपोली अपने ओरिजिनल सेंस में कहीं एग्जिस्ट नहीं करता. दीज आर द यास्टिक. ये वो सिचुएशन है जो एक लेवल को शो करती है, ये दूसरा एक्सट्रीम शो करती है. इसमें मिलियंस ऑफ सेलर्स हैं, इसमें सिंगल सेलर्स हैं. ठीक है. और ये जो बीच के दो हैं इनके दरमियान कुछ फीचर्स ये परफेक्ट कंपटीशन के लेते हैं और कुछ फीचर्स ये मोनोपोली के लेते हैं. तो जनरली दुनिया में जो एग्जिस्ट करते हैं मार्केट स्ट्रक्चर वो ये वाले कर रहे होते हैं और इनके साथ हम कंपैरिजन करते हैं. यानी हम ये देखते हैं कि अच्छा मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन जो है वो परफेक्ट कंपटीशन के कितना नियर है या मोनोपोली के कितना नियर है. तो ये जो दो कंपटीशन, ये जो दो फीचर्स है ये जनरली कंपैरिजन के लिए यूज होते हैं. और एग्जिस्टिंग जो मार्केट के अंदर स्ट्रक्चर्स हैं वो परफेक्ट कंपटीशन मोनोपोली नहीं होते, दे आर मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड ओलिगोपोली. एंड दैट इज ऑल फ्रॉम दिस चैप्टर, टाइप ऑफ मोनोपोलीज. ये मैं कर चुकी हूँ आपके साथ. इसके अंदर ये थोड़ा सा देख ले. अच्छा स्टूडेंट्स याद रखिएगा आप लोगों ने इसके नोट्स बनाने हैं. मैं आपके नोट्स के 10 मार्क कॉपी है आपकी. ओके. सारे नोट्स टेकिंग करनी है आपने. ये सब हमने नहीं करना, ये सब मैं नहीं करवाऊंगी. मैं सिर्फ एक्सरसाइज को थोड़ा सा टच करना चाह रही हूँ. ठीक है जी. ये रिव्यू है. I think enough. मैं आपको एक्टिविटीज दे दूंगी इसकी. So we have ended up with the micro theory and next week will be about the macro theory. Thank you so much.